afternoon, everyone. We are doing current affairs classes, and yesterday there was a state PCS exam conducted. So in the class, we are discussing that question paper also. It has been shared in the WhatsApp group. Okay, let us start with the 17th question. We are discussing the questions mostly that are from either from current affairs or something that we have already discussed in our class, so that you can identify how questions are coming from the topics that we have discussed in our class. Okay, right. Look at the question 17, or let me share the question paper on the screen itself. Okay. हम आपको ये भी प्रूव करते हैं कि हम पेपर से बाद नहीं कहते कि 90% सिलेबस हमारे पेपर से आ गया, ठीक है, हमारी क्लासेस से, कि 100% हमारे से आया, हम इसे पूछ के पेपर बना है, हम बस आपको पेपर दिखाते हैं, ठीक है। 17th क्वेश्चन में देखा 1790 लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन Bengal province. Under this, zamindaris were recognized as the owners of the entire land in zamindars. It made the right of land ownership hereditary. Zamindars were given the right to sell the land. Not correct, they have asked. Every option seems correct. Every option seems correct. Only the question is logically incorrect, because you have to remember that Lord Wellesley became the Governor General. God Wellesley became the Governor General in which times? In which times? During the subsidiary alliance. 1798. Subsidiary alliance. It was somewhere in 1800s. It was somewhere in 1800s, and before that we have so many times read about Warren Hastings, Lord Cornwallis, Cornwallis Code. So the answer would have been Cornwallis. So this statement is wrong. Okay, very good. Petra Dura, you all know. Petra Dura is this in history you would have definitely done. Simple thing. When you go to Taj Mahal, you see Petra Dura. It means on the marble there is beautiful ornamented patterns. Okay, that is Petra Dura. Very good. Oh my God, 19th question. नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल क्वेश्चन। अच्छा पेपर बना है, अच्छा पेपर, मतलब स्टेट पीसीएस भी अब कंपटीशन देने लग गए हैं बच्चों को, बढ़िया वाला। जी कर पाएंगे कि नहीं? जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। वेरी गुड। सबसे पहले फर्स्ट इज गोलकनाथ केस। B. फर्स्ट इज गोलकनाथ केस, यानी कि आंसर बी 2। ये गया, हमें ऐसे करना है, हमें आराम से सोच समझ के करना है। आफ्टर गोलकनाथ देयर वाज केशवानंद भारती केस। ओके, देन इट इज 4, सेकंड के बाद 4, सेकंड के बाद 4, then it was Rajanarayan case, it means 3, and then it was answer B. Okay, very good. क्वेश्चन आप बस काउंट करते रहिएगा, क्लास से कितने क्वेश्चंस आए हैं। ओके, क्लास से कितने क्वेश्चंस आए काउंट करते रहिएगा, बस ये आप लोगों की जिम्मेदारी काउंट करना है। हाँ जी, 20th क्वेश्चन, फाइनेंशियल बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। लोअर हाउस इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। टेल मी द आंसर, tell me the answer. Financial bill can be introduced only in Lok Sabha. Second, financial bills is directly elected by the, or Lok Sabha is the directly elected by the people. Option, tell me answer. A, B, C, D. Huh? Sir, B. B. B.
बैंगलोर, दिल्ली, बैंगलोर। बैंगलोर। सब लोग बैंगलोर जाना चाहते हैं। बेटा सिलेक्शन दिल्ली से ही होगा, एक बात ध्यान रखना। बैंगलोर चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, सिलेक्शन मिलेगा डी होगा। डी होगा। बताइए क्यों? सर बिल तो कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। नहीं नहीं बेटा, बिल तो कहीं भी नहीं, फाइनेंशियल बिल्स की बात पूछ रहे हैं हम। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 जो होता है वो उसी वेरी में भी हो गुड। सकता है आर्टिकल इंट्रोड्यूस। 117 पार्ट 3, financial bill type 2. This was clearly told to you that it can be introduced in both the houses, and the question is not about money bill, it is about financial bills. अच्छा क्वेश्चन है ना? बोल तो रहे, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हो। अभी तक हमने आज तक स्टेट पीसीएस के पेपर्स नहीं डिस्कस करते हैं। हम तभी डिस्कस करते हैं ना क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। तो यूपीएससी में अगर एग्जैक्टली क्वेश्चन आ जाए तो कोई ताज्जुब मत समझिएगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, तो आंसर विल बी डी। ओके, वेरी गुड। और आधे टेस्ट सीरीज पर जहां जो आंसर है, लोग इसमें के आंसर पता नहीं ए बी क्या दे रहे हैं, क्योंकि इतना जानने के लिए इतना पॉलिटी डिटेल में भी तो जानना चाहिए, और इतना डिटेल में जानने के लिए कैसे जानेंगे? वेरी गुड। कितने क्वेश्चन सिर्फ काउंट करते रहेंगे। द नोशन ऑफ अपहोल्डिंग प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज कंटेन्ड इन फंडामेंटल ड्यूटीज। याद करो, प्रियम्बल में याद करवाया था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी से लिखा है, अलग से लिखा है, सॉवरेनिटी के साथ नहीं है। सॉवरेनिटी वर्ड ही नहीं है प्रियम्बल में, सॉवरन वर्ड है। प्रियम्बल में तो सॉवरेनिटी वर्ड ही नहीं है। तो आंसर विल बी सी, फंडामेंटल ड्यूटीज। वेरी गुड। ओहो 22 नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन बस काउंट करते रहना, 22 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बताओ जल्दी फ्रेंच बताओ। सर। फ्रेंच रेवोल्यूशन, वेरी गुड। सी। क्वेश्चन काउंट कर। 23rd, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। सी। सी। डीपीएससी आर्टिकल 49 या 50 है। आर्टिकल 1, 14 and 15 नहीं, आर्टिकल 1। अच्छा तू उसके नीचे वाले में चले गए। 23 की हम बात कर रहे हैं। 24th, 24th बी। बी, आर्टिकल 51, वो सॉरी आर्टिकल 50, आर्टिकल 50। वेरी गुड। 25 ए। क्वेश्चन काउंट हो गए? कितने काउंट करते रहिए बस आप लोग। वेरी गुड। 26, ये बहुत मुश्किल है, ये भी नहीं कर पाओगे। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। वेरी गुड आंसर। बेटा मेज नहीं है, लिख के नहीं आना है, एबीसीडी में सिर्फ गोले बनाने हैं। सी। रिकॉग्नाइज लैंग्वेज एट शेड्यूल, ए का 4, सी और डी में से ऑप्शन होगा। एंटी डिफेक्शन 10 शेड्यूल, बी का 2, सी आंसर होगा। ठीक है, ओके वेरी सी। गुड। 27th, अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। बी, चलो हिंट देते हैं। सिक्किम जो है, डी। चलो हिंट तो सुन लेते हैं, एक बार हिंट सुनते हैं। सिक्किम was established आफ्टर हरियाणा, ठीक है, 1974 के आसपास। ठीक है, आसपास 1974 में, और हरियाणा हुआ था 1966। अब हो जाए क्वेश्चन सॉल्व, बस इतना ही जानना था। एक ही ऑप्शन है जहां पर
सिक्किम हरियाणा के बाद बन रहा है। सी। देख लो, एक क्या सिक्किम हरियाणा के बाद बन रहा है। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन काउंट करते रहो। ओहो, ये ना कर पाओ, बिल्कुल नहीं कर सकते। 28 कर ही नहीं सकते ये तो। B. बी, वेरी गुड, आंसर इज बी। 301 राइट टू प्रॉपर्टी थोड़ी है, 300 ए राइट टू प्रॉपर्टी है। वेरी गुड। 29 ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, नॉट करेक्ट पूछा है। 30th ये भी डिस्कस कर लिया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ पूछा है। वेरी गुड, ठीक है। 31st ये हमने अपने करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाते हैं ना, रेड ब्रिज न्यूज था, उसमें बताया था गोल्डन एरोज में इंडक्ट हुआ। फैक्ट है। चलो, ये आईआर से आ गया। एससीओ, क्वाड, एशियन और म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन। मैड इज म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन। ओके, तो मैड क्या हुआ? न्यूक्लियर वेपन्स के लिए होता है वो। फोर्थ का सी, ए या बी में से होगा। अब क्वाड इज अ ट्रेड, पॉलिटिक्स, कल्चर, facilitates economic, political, security, military, education, social, cultural integration. Nuclear weapon था ही नहीं। Strategic forum and SCO, trade, politics का facilitates ये A। थर्ड का होगा, सेकंड का होगा डी, स्ट्रेटेजिक फोरम। ठीक है, ए आंसर होगा। वो ये ना कर पाओ, तुमसे हो ही नहीं पाएगा ये वाला। कोविड-19 का असली नाम क्या है? C. SARS CoV। सी सर। वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। हम क्या पूरा पेपर डिस्कस करने हैं क्या? चलो कर ही लेते हैं पूरा पेपर, आपका भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। OCI कैन परचेज एग्रीकल्चर लैंड। अभी जो किसान धरने बैठे हैं ना, वो धरना 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना, अगर एग्रीकल्चर लैंड परचेज करेंगे तो। ए तो गया। बी, दे कैन परस्यू प्रोफेशन, डॉक्टर, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, चार्टेड, बिल्कुल कर सकते हैं। सी, OCI नीड स्पेशल परमिट टू विजिट एनी एरिया नोटिफाइड एज प्रोटेक्टेड रेस्ट्रिक्टेड, ये भी सही है। फोर्थ, OCI कैन अंडरटेक एनी रिसर्च, एनी मिशनरी, एनी जर्नलिस्टिक एक्टिविटी ना, ये तो इंडियन ना कर पा रहे, है ना, तो ये तो इंडियंस भी नहीं कर सकते ना। एनी रिसर्च, आप बोलो कि हम तो रिसर्च कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं ये नहीं बता सकते, तो पट उठा ले। एनी जर्नलिस्ट एक्टिविटीज कर लेंगे, नहीं कर सकते, है ना। सीक्रेट्स, ऑफिशियल सीक्रेट्स के अंदर इंटरफेयर थोड़ी कर सकते हैं आप। तो फोर्थ इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग, फोर्थ इज रॉन्ग, थर्ड 1 2 एंड 3 और 2, तो आंसर विल बी सी। ओके, 35 ये सब करंट अफेयर्स में पढ़े हुए हैं, ये वाला 35 तो पढ़ा हुआ करंट अफेयर्स में, ये कर लीजिए सॉल्व। C. Guidelines are for the over the top platforms only. याद है डिजिटल मीडिया भी इंक्लूड कर रहा था, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। इन द कोड ऑफ प्रोसीजर एथिक्स, प्रोसीजर, सेफगार्ड, इंटीग्रिटी एज डिफाइंड द गाइडलाइन। कोड ऑफ एथिक्स की बात थी, तो सेकंड इज करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग थी, बिल्कुल, ये भी हमारे पढ़ाया था हमने। रूल्स रिक्वायर इंटरमीडिएट सेटअप, ग्रीवियस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये भी हमने पढ़ाया था, तो आंसर विल बी सी। ओके, आंसर विल बी सी। Okay. 36. Oh, India wants Chabahar port to be included in the INSTC. That extends from, ये तो IR है, तो पढ़ाएंगे ना आप लोग। तो ईरान इसका आंसर है। चाइना और मंगोलिया तो पार्ट है ही नहीं, चाइना 3 के बिना एक ही ऑप्शन है। चाइना थोड़ी अपने बम प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे। ये हो गए, ये हो गए। अरे हाँ, ये 39 क्वेश्चन देखिए।
1.9 kilometer long Maitri Setu, Tripura and Bangladesh over Feni River has been built. The bridge between Sabroom in Tripura and Ramgarh in Bangladesh. ये जो है 2021 के जनवरी फरवरी का था, ठीक है, जनवरी फरवरी का था। हमने जब पढ़ाया था, हमने याद करवाया था। याद करो बस एक चीज, रामगढ़ इंडिया में नहीं बांग्लादेश में है। बस एक चीज ध्यान रखनी, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी ए, इट इज बिटवीन सबरूम इन त्रिपुरा एंड रामगढ़ इन बांग्लादेश। हम देख रहे हैं करंट और, हाँ जी, 40 सेकंड क्वेश्चन। A. A. आरटीपीसीआर, बेटा कभी आरटीपीसीआर अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि आपने नहीं कराया है, तभी आपको नहीं पता है, ठीक है, कि नोज और थ्रोट से तो स्वैब लेते ही लेते हैं। फर्स्ट तो गलत, रैपिड एंटीजन में भी यही करते हैं, ये भी गलत। एंटीबॉडीज वाला, एंटीबॉडी वाला क्योंकि खून में होती है ना एंटीबॉडीज, तो उसके लिए खून लेना पड़ेगा, नोज उससे कर ही नहीं सकते, तो आंसर विल बी डी, रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट। ठीक है, मदन बुई लोकुर कमेटी बताया था, स्टबल बर्निंग जब समझाया था, याद करो। 1 मेंबर कमेटी, स्टबल बर्निंग, पोल्यूशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कंजर्वेशन अथॉरिटी अंडर सुप्रीम कोर्ट, याद है? ये तो सब याद है, सब कमेटी भूल गए। अच्छा ठीक है, तो इट वाज प्रिवेंट स्टबल बर्निंग। वेरी गुड। जीएसटी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन का आंसर बता दो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। The word vaccine has been derived from Latin word antibody immunity cow guinea. Latin word meaning vaccine word कहाँ से आया है? वैक्सीन वर्ड इम्यूनिटी से आया होगा जहां तक हमें लगता है। काऊ है सर, काऊ है, अच्छा। ईपीएफओ तो में 46 का डी है। ऐसे क्वेश्चन जो है ना, वैक्सीन के कहाँ से आया, इसमें गैस क्या ही मारोगे, तुमको लैटिन आती होती तो कर देते हैं, नहीं पता छोड़ देने वाले क्वेश्चन होते हैं, वैक्सीन कहाँ से आया, लेकिन मन नहीं करता ना, मन मानता नहीं। कितना सिंपल क्वेश्चन जिसमें एक ही वर्ड का आंसर हो, कैसे छोड़ दे। ठीक है, हमारा मन, ये सबसे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है नेगेटिव मार्किंग वाले। अब जैसे 46 क्वेश्चन आपको छोड़ दो ना, बिल्कुल भी गिल्ट फीलिंग नहीं आएगी। 46 क्वेश्चन, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, मतलब जो दे दी सर्विस उसका ही तो कंजम्पशन करेंगे ना। रुक जा, सुन तो। 46 क्वेश्चन छोड़ने में ना बिल्कुल शर्म नहीं आई, ठीक है, लेकिन 40 सेकंड छोड़ने में ना आपको मतलब आत्मा गवाही नहीं देगी कि छोड़ देना चाहिए उसको। ये जरूर अटेम्प्ट करोगे। क्यों? कि यार एक ही वर्ड है, कैसे छोड़ दें इसको, है ना, है ना। ये क्वेश्चंस इसीलिए बनाए जाते हैं। हाँ जी, 46, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, बिल्कुल, सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजनिंग ऑफ गुड्स। सेकंड इज एप्लीकेबल सप्लाई ऑफ गुड। आप यहाँ से यहाँ वहां कहीं और सामान ले जाते हैं, जीएसटी दिया है उसके लिए, तो ई वे बिल होता है ना, यहाँ से वहां सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। अगर आपने कोई सामान बेचा ही नहीं तो उसमें कौन सी आपने वैल्यू ऐड कर दी? जो आपने सामान बेचा ही नहीं उस पर किस बात का टैक्स? सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, मतलब जब तक कंज्यूम नहीं हुआ है, जब तक कंज्यूम नहीं हुआ है तब तक जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, तब तक जीएसटी नहीं लगेगा जब तक कंज्यूम नहीं हुआ। तो दिस इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज एन इंस्टीट्यूट दैट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ठीक है, जब तक these many students have not completed their course, there is no liability of GST. जैसे 20 लाख is the limit ना, 20 लाख के ऊपर GST is compulsory.
जीएसटी इज कंपल्सरी। तो जब तक इतना नहीं होता है तब तक कंजम्पशन नहीं होती है, तो इट इज नॉट कंपल्सरी। इट इज लिवाइड एट द रेट्स डिसाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल। बिल्कुल सही है। तो आंसर विल बी डी 1, 3 एंड 4। ओके, सर इतनी डेस्टिनेशन बेस्ड क्या मतलब डेस्टिनेशन का कैसे डिफरेंस? मतलब जहां लास्ट में पहुंचा तब टैक्स देना है। जब लोग, जैसे मान लो खाने में बेटा सबसे ज्यादा क्या पसंद है, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। खाने में मतलब सबसे ज्यादा क्या पसंद है जो ऑर्डर कर करके खाते हैं? ये नहीं कि सूजी का हलवा, वो बाहर से नहीं हो तो घर में बन जाता है। पिज्जा। हाँ, पिज्जा, वेरी गुड। जब तक आपके पास पिज्जा खाने के लिए नहीं पहुंचा ना तब तक उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सबका ही पिज्जा फेमस है, सब इटालियन है। तुम लोग बाल ऐसे पीछे करके जो अपने आप को गैंगस्टर तो नहीं मानते हो, सब लोग, सबको पिज्जा पसंद है। हमें इकलौते हैं जिनको नहीं पसंद है। हमें ना पिज्जा पसंद, ना पास्ता पसंद, कच्चे कच्चे लगते हैं सब। वो अलग बात है, एक जमाने में बहुत खाए हम। ठीक। कुसुम के बारे में बताया था थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही बताया था कुसुम के बारे में। याद है कुछ Yes, कुसुम के sir. बारे में? वेरी गुड बेटा, देख लो क्वेश्चन, देख लो, आंसर करो। Sir, A. वेरी गुड। 48 इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, तो आप लोग वैसे हाथ खड़े कर दोगे, है ना? 48 बताओ। 40, हाँ भी B बोल। है। बी है, कैश इज ए क्यों नहीं है? B. सर वो तो बैंक के पास होता है। वेरी गुड, आरबीआई के पास सीआरआर रखा रहता है। वेरी गुड। 49 So B हो गया इसका। बी। अरे डेट ट्रैप क्या होता है याद करो। क्रेडिट कार्ड अगर किसी के पास है ना, उसका आंसर बड़े आराम से दे देंगे। क्रेडिट कार्ड का बिल आया, क्रेडिट कार्ड का बिल देने के लिए अगर दूसरे क्रेडिट कार्ड पे आपने पेमेंट करी तो डेट ट्रैप है, आप एक जाल में फंस चुके हैं। आप एक बिल भरने के लिए दूसरी जगह से बिल बना रहे हैं, फिर उसका बिल भरने के लिए दूसरी जगह से बिल बना है, तो आप एक ट्रैप में फंस चुके हैं। सो द डेट ट्रैप। व्हेन आपने लोन लिया, उस लोन के इंटरेस्ट पेमेंट के लिए आपने लोन लिया, दैट इज डेट ट्रैप। ठीक है, अब आप साइकिल में फंस चुके हैं। क्योंकि जो दूसरा, अगर आप पे इतने पैसे होते तो आप लोन ही ना लेते, और लोन का इंटरेस्ट पेमेंट के लिए अगर आपको लोन लेना पड़ता तो यानी कि आप दूसरा इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, तो उसको पेमेंट करने के लिए तीसरी जगह से लोन लेंगे, तीसरा पेमेंट के लिए चौथी जगह से लोन लेंगे, और आप का खेल खत्म हो चुका है। इसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड ले लीजिए ना सर या मैडम, यही यही इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ये स्कीम चलती है। वेरी गुड। 50th क्वेश्चन, रेवतवाड़ी सिस्टम। सी सर। C. सी, वेरी गुड। और ये ना कर पाओ, कर ही नहीं सकते, ये नहीं कि किसी, बिल्कुल नहीं हो सकता। सी सर। सी, वेरी गुड। ये क्लास में, ये तो करंट अफेयर क्लास में बताया था कि 3 कमीशन मेन याद रखना, सरकारिया, पुंछियन, राजा मन्नार, राइट? तो 16 से राज्यों ने सुना नहीं। वेरी गुड। 50th सेकंड तो आपके टैटू ये सबने बनवाया हुआ है, 50, 60, 90, 29, 30 वाला, इसमें 29। वेरी गुड। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाला भी हमने बता दिया है आपको। फिर एंटी डिफेक्शन वाला, ये वाला बताइए, 54th। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। सर डी। डी 2 and 4। Anti defection was enacted during Indira Gandhi government 1984। बताओ।
1984. फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट आया था 1985 में, है ना? है ना? तो फर्स्ट इज रॉन्ग। चलो फिर भी नहीं पता, मैं छोड़ दीजिए, इतना डिटेल नहीं पता। इट इज प्लेस्ड अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। सेकंड इज करेक्ट, सब में सेकंड है, फंसा दिया इन्होंने हमें। थर्ड देखते हैं, द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज फर्दर स्टैंडर्ड बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, ये कौन सा था? 91st। थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग। ठीक है, 1 and 4, अब तो 1 तो पता होना ही चाहिए, फंसा दिया क्वेश्चन में। फोर्थ जानने की जरूरत है हमें, क्या मतलब? फोर्थ वाले ऑप्शन दोनों है तो देखने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए अगर आपको डिटेल में पता है तो आप कर पाते हो, वरना नहीं कर पाते। तो आंसर विल बी D, 2 and 4। ठीक है, ये क्यों आया था? आए राम गए राम सिस्टम ही कहां से आया था? हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली से। ठीक है, तो जो एंटी डिफेक्शन बना है, बना ही स्टेट से, तो स्टेट ने इसके डिटेल में पूछ लिया। वेरी गुड। 55th, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर नोट्स रिवाइज करे हुए तो कर देंगे, नोट्स नहीं रिवाइज करा है तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। C. सी, जीवी के राव, LM सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। है ना सर, सिंघवी है ना? सर सिंघवी। जीवीके राव ने भी सजेस्ट किया था, लेकिन शायद अपडेट नहीं हुआ था वो डिसीजन, लेकिन सजेस्ट तो किया था उन्होंने। लेकिन LM GV के सिंघवी, राव ही तो था। नहीं बेटा, इन्होंने जो आंसर मार्क किया वो सर करेक्ट आंसर नहीं है, जो आप क्वेश्चन में पेपर में देख के बता रहे हैं हम सब। ये LM सिंघवी कमेटी है इसका आंसर। ठीक है, इसी के बाद जो है फिर था कि हम 62nd 63rd वो जो अमेंडमेंट लाने थे, 61st 62nd जो थे वो लाने, इंट्रोड्यूस की बात हुई थी। वेरी गुड। 56th, ये भी हमने डिस्कस कर ही लिया है। वेरी गुड, बहुत ध्यान से देखिएगा, नॉट करेक्ट पूछा है। आधे स्टूडेंट जो है इसमें यहाँ गलती करा है कि फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग, आंसर विल बी। ठीक है, तो जो ज्यादा तेज भागता है उसका क्या होता है? नुकसान होता है ना? है ना? ये आप लोगों ने फटाक से सेकंड आंसर भी निकाल दिया होगा मन में पढ़ते क्वेश्चन कि वाओ, फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट रॉन्ग, बी। ए होगा। हाँ, वो तो तब पता लगेगा जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे कि सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ के जब यहाँ तक पहुंचेंगे विच इज नॉट करेक्ट, है ना? बताया ना, कान खड़े और पूंछ घुमाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बोला है ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। वेरी गुड। ओहो, ये तो नहीं कर पाओगे। ये कितने, अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए? कोई काउंट कर रहा है? क्लास से डिस्कस करे, कोई काउंट कर रहा है? 20 प्लस तो हो गए मिनिमम, 20 प्लस तो हम जा चुके हैं। वेरी गुड, 100 क्वेश्चन है पूरे पेपर में, बस 21st प्लस हम जा चुके हैं। हाँ जी, 57th। सो बी। बी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, 30 हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? 57 में बी। वेरी गुड। होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, नो जी, इलेक्टेड ऑफिस है, टर्म है तब तक जब तक वो MP रहेंगे या रहेंगी। सेकंड तो आप बताइए, सही है। इंटेंस टू रिजाइन किसको देते हैं रेजिग्नेशन? डिप्टी स्पीकर को। मस्ट बी सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा, वो तो प्रोटम की बात हो रही है, ये तो इलेक्टेड पोस्ट है। वेरी गुड, ये तो साइंस 60 साइंस। चलो देख रहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, चलो बता देता आंसर बनने का, क्वेश्चन सामने था, आंसर बताया नहीं। ठीक है, which are the following organic compound least likely to use in making perfume? हमें नहीं पता है, खुद से देख लेना। ठीक है, हमको नहीं पता। परफ्यूम में हम अल्कोहल तो होता है, तो ए तो आंसर नहीं होगा। लीस्ट लाइकली पूछा है, ए तो नहीं होगा। बाकी केमिस्ट्री में आप लोगों को पहले से पता है, हमारा हाथ बहुत ज्यादा तंग है, हमें नहीं पता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन क्लीनिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स? यूपीएससी पास्ट ईयर क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन वो है नहीं। एक्वारिगिया होता है। ऑक्सलेट। ठीक है, एक्वारिगिया होता है। एक्वारिगिया इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड फ्रॉम निट्रिक एसिड, यानी कि HNO3 and HCl। ठीक है, देखो यूपीएससी, हमें केमिस्ट्री नहीं आती है, लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से करे थे अपने जमाने में। ठीक है,
ये बात समझिए। तो nitric acid will be the answer. Okay, very good. Which of the following, देखो आप एक स्टूडेंट जिसने पेपर दिया देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द आंसर उन्होंने सही मार्क करे थे, साइंस में आते इनका मामला बिगड़ गया। कुछ स्टूडेंट्स के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, कुछ होते हैं, इनका साइंस में मामला बिगड़ गया और इनके लगभग 3-4 क्वेश्चन लगातार गलत हो रहे हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बताइए। ये यूबी यूपीएससी ए बी, कोई सी और डी वाला? तो रिफ्रैक्शन से होता है माइक मिराज। क्या रिफ्लेक्शन से होता है मिराज? बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। यहां से रेज आई, वो थोड़ा झुकी उल्टी चली गई, तो रिफ्रैक्शन ही तो रिफ्लेक्शन करवा देता है, और क्या होता है? नहीं लेकिन सर और ऑप्शन में मतलब यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो डायमंड कैलेडोस्कोप और क्लेडियोस्कोप नाम को क्या होता है? बस सवाल ये है, बाकी सब छोड़ दीजिए। क्या हमें पता है क्या होता है? सो वो Yes, जो sir. जिसमें देखते हैं अंदर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं। उसमें कौन सा रिफ्लेक्शन, उसमें लाइटें घूम रही हैं, आपको मजा आता है देख के। बायोस्कोप और क्लेडियोस्कोप को एक जैसा मत समझिए। क्लेडियोस्कोप ऐसे छोटा सा होता है, उसमें बहुत सारी लाइटें दिखती हैं, हमको बहुत सारे कलर्स दिखते हैं, उसमें वो एक्चुअली कलर्स को गोल गोल घूम रहे हैं, इसमें कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ही नहीं है, लाइट का कोई रोल ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो आंसर विल बी क्लेडियोस्कोप। मिराज डेजर्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। रिफ्रैक्शन जब एक पर्टिकुलर, उसको वो याद नहीं आ रहा, शायद क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, आफ्टर द क्रिटिकल एंगल इट द रिफ्रैक्शन द रेज टेंड्स टू रिफ्लेक्ट and that is called as total internal reflection. तो मिराज, डायमंड स्पार्कल एंड ऑप्टिकल फाइबर. ओके, वेरी गुड। 61st क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बी हो सकता है इसका। बी हो सकता है, बी या डी? बी तो बी बॉम्बे। बॉम्बे, वेरी गुड। हाँ जी, ब्लॉकचेन पता है हम लोग? ब्लॉकचेन अभी थोड़े दिन पहले ही बताया था साइंस Sir, टेक। blockchain is not a cryptocurrency, is a means of to secure the transaction between the बस कर लिया जो क्वेश्चन, बाकी सब तो ऑप्शन भी नहीं पढ़ने हमको, बस ये पढ़ना है करेक्ट पूछा कि नहीं, तो ट्रू शुरू में ही पूछ लिया, तो नीचे गलती होने के चांसेस ही नहीं है। 3 is not the first and second are correct. It is a cryptographically secure database or distributed ledger across a number of participants. It is a digital ledger of transactions. बिल्कुल सही है, तो आंसर विल बी बी 1 and 2। ओके, योगी ओकोंगो ये वाला, ये आईआर में नोट्स में हमारे था कि इनको डब्ल्यूटीओ का वो बना दिया है डायरेक्टर जनरल। ठीक है, डायरेक्टर जनरल बना दिया है, ये भी फिर भी आप कर लेते हैं। ठीक है, वर्ल्ड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात है, वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, और ये कर लो 63rd, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओए होए होए, मजा आ जाएगा। डी। डी, वेरी गुड। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, पोकेमोन गो ये भी क्लास में बताया था, है ना? पोकेमोन गो ऑगमेंटेड रियलिटी ये भी क्लास में बताया था, और बिटकॉइन वो जूम, ये भी मेरे क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, बिटकॉइन ओ सॉरी, जूम ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है, इट इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म। वेरी गुड। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट, अरे बताओ इसका आंसर कहां पर है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर। याद करो बहुत साल पहले लोकटक लेक के बारे में बताया था लार्जेस्ट फ्लैश वाटर लेक है, बताया था मणिपुर में है, बताया था केबल लामजो नेशनल पार्क है, वहां पर ये बताया था, वहां पे संगाई डियर होता है, वहां पर ये बताया था फुमडीज होते हैं। याद करो, याद है? वेरी गुड। February 21 में कौन सा लैंड हुआ है? क्वेश्चन, अगर क्यूरियोसिटी भी सही था, लेकिन February 21 की बात कर रहे हैं रिसेंटली, तो आंसर विल बी परसिवरेंस। ये बताओ 66, ये तो बता दो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है।
So B. बी बेलगांव, ठीक है। ये फिर हिस्ट्री का आगे लक्ष्मी स्वामीनाथन, कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी, ठीक है। तो ए INA में थी, 1 का 3 और मैडम कामा ने क्या किया था, पहली बार फॉरेन सॉइल पे इंडियन फ्लैग अनफोल्ड किया था, तो इसका आंसर हो गया बी का 4, 1 का 3, बी का 4, डी आंसर हो गया इसका। अरुणा आसफ अली, इन्होंने होस्टेड द फ्लैग एट ग्वालियर टैंक मैदान इन 1942। याद है क्विट इंडिया मूवमेंट में अरुणा आसफ अली वाज पार्टिसिपेटिंग एंड बीना दास अटेम्प्टेड टू असैसिनेट गवर्नर जैक्सन। वेरी गुड। 60th क्वेश्चन बता दो, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन बता दो, बहुत ये सबकी देशभक्ति चेक करता है। जो यूथ अपने आप को फॉलोअर्स ऑफ भगत सिंह बताते हैं ना, उनकी सबकी देशभक्ति चेक कर ली इस क्वेश्चन ने। सर डी लग रहा है। डी, चलिए देखते हैं। हाँ जी, क्या चंद्रशेखर आजाद को कोई पकड़ पाया? नहीं। नो। ए और सी गए। वेरी गुड। जो भगत सिंह जी थे, शहीद भगत सिंह, उनको किस के साथ फांसी दी गई थी वैसे, मैं याद है? सुखदेव, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु। वेरी गुड। तो भगत सिंह भी नहीं होंगे आंसर, फोर्थ के बिना बी है। फोर्थ के बिना बी है। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खान एंड ठाकुर रोशन सिंह, इनको काकोरी कॉन्स्पिरेसी के अंडर ही दे वर हैंग्ड, ठीक है। जो भगत सिंह थे उनको, या भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु जो थे, उनको किस के अंदर कौन से केस के लिए उनको हैंग किया गया था? वो जनरेशन है जो कहते हैं हम गांधी जी को फॉलो नहीं करते, हम भगत सिंह के फैन हैं, है ना। हम वी आर ऑफ दैट जनरेशन, वी आर ऑफ दैट जनरेशन। बताइए, है ना। काम के नहीं, हम तो गांधी जी के फॉलो नहीं, हम भगत सिंह के फॉलोअर, बिलीव ये हो। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लाहौर कॉन्स्पिरेसी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी क्या क्या लाहौर कॉन्स्पिरेसी में क्या हुआ था लाहौर में? बहुत साल पहले, एक्चुअली बहुत साल पहले, लाला लाजपत राय जो है, ही वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी साइमन कमीशन, ठीक है। देयर वॉज अ जनरल, ठीक है, उसका भी नाम डायर ही था, लेकिन ही वॉज नॉट द डायर हु commanded for firing in Jallianwala Bagh. He was not the same Dyer, ठीक है। So Bhagat Singh, because of the orders, Lala Lajpat Rai succumbed to the injuries. So as a revenge, Bhagat Singh with his associates killed that person, and he was hanged for that case, not for throwing bomb in the assembly. नॉट फॉर थ्रोइंग बॉम्ब इन दिस, ठीक है। बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए। वेरी गुड। हिस्ट्री ओ 71st क्वेश्चन, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है तो। हाँ राहुल, अरे अब आयो, पहले थे राहुल अभी क्लास में?
राहुल को क्वेश्चन दिखाना बनता है, राहुल को क्वेश्चन दिखाना। देख लिया 64th वाला क्वेश्चन देख लिया? ये राहुल, मुझे याद है कि हमने राहुल को पूरा अच्छे से उस टाइम डिस्कस किया था राहुल के साथ। यस सर। है ना? याद है जब बताया था मणिपुर में लोकटक मणिपुर है, केबुल लामजाओ। हाँ वही वाला। यस सर। चलिए 71st क्वेश्चन देखिए आप लोग। So C. सी ये तो कर लेंगे, नगाड़ा विशाला द्रविड़ा, बहुत सिंपल है, यूपीएससी का पास्ट ईयर भी है। ठीक है, जिसने यूपीएससी क्या है कि हमें नहीं आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा, तो यूपीएससी पास्ट ईयर भी करा होगा तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड। 72nd। और ये मत सोचिएगा आज क्वेश्चन पेपर करके छोड़ देंगे, आईआर तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, आईआर तो हम लोग पढ़ेंगे। So C हो गया। सी बेल्ट ऑफ काम मतलब डोल्ड्रम्स बोलते हैं, इक्वेटोरियल। फर्स्ट का 3 सी हो गया, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। डिफ्लेक्टिंग फोर्सेस कोरिलेस, सेकंड का 1। एक बार फिर भी ना हम लोग जल्दबाजी में नहीं करेंगे, हमेशा देख लेते हैं। आज दिखाया ना बनोली से कितना नुकसान हो सकता था, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। 73rd। So C. 73 नीलगिरी में डोडा बेटा, फर्स्ट का 4 सही है। सी C. वेरी गुड। श्रीहरिकोटा, हाँ ये वाला हमने उस दिन जब मैप भी दिखाया था बताया था, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पुल्लीकट, भटकंडे, विष्णु नारायण भटकंडे, ये तो हिस्ट्री आर्ट कल्चर का। ठीक है, इसका क्या है? So A होगा। ए होगा। ठीक है, हमको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तानी क्लास में भटकंडे अकेडमी में चेक करना पड़ेगा, मैं गेस कर रही हूँ। नहीं है, भटकंडे अकेडमी भी है, डांस म्यूजिक की अकेडमी है। ठीक है, हमें लेकिन ये नहीं पता कर्नाटिक है कि हिंदुस्तानी क्लासिकल है। ये मान के चलते नॉर्थ इंडिया में है तो हिंदुस्तानी क्लासिकल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है अकेडमी, क्योंकि यहाँ नॉर्थ इंडिया में लोग कर्नाटिक म्यूजिक कितना फॉलो नहीं करते जनरली। ठीक है, अगर आप में से कोई फॉलो हो तो ये मतलब कि ऐसे कैसे बोलते हैं जनरली, हम तो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी है ना? सर हाँ जी बोलिए। नहीं बोलेंगे, चलिए आगे देखते हैं। 76 आरसीईपी में कौन कौन मेंबर, कौन सा मेंबर नहीं है इनमें से? आरसीईपी, ये आईआर का क्वेश्चन है। आरसीईपी में 10 तो एशियन मेंबर्स प्लस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान, प्लस इंडिया होना था, इंडिया बाहर निकल गया। कौन सा बचा इनमें से? बांग्लादेश। तो आंसर विल बी डी, बांग्लादेश। इसके लिए आपको एशियन के मेंबर्स भी पता होने चाहिए। सर आईआर तो पढ़ेंगे ना? हाँ पढ़ेंगे, लेकिन एशियन तो पता होगा। सर वो रीजनल है तो बांग्लादेश तो एनीवे आउट हो जाएगा ना। बांग्लादेश रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, अगर जहां इंडिया है वहां तो बांग्लादेश तो वही होगा। इंडिया तो पहले आरसीईपी का मेंबर था ना। ऐसे तो फिर रीजनल में तो वो भी बाहर हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी, न्यूजीलैंड भी। हाँ जी 77। एफआरबीएम के बारे में क्लास में कुछ बताया था हमने, है ना? एफआरबीएम भी बताया था क्लास में, क्वेश्चन करिए वाला। एसडीआर भी बताया था एक दिन क्लास में, किसी ने पूछा था आप में से। A. ए So B. बी। चलिए देखते हैं। बिटकॉइन नेशनल स्टैक इंडिया में अलाउड है बिटकॉइन? नहीं, फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक है, तो सी और डी तो गया। सेकंड, एफआरबीएम फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट इज टू इंश्योर फिस्कल डेफिसिट ऊपर ज्यादा कम ना हो, तो सेकंड इज करेक्ट। तो ए आंसर हो गया। थर्ड से भी इंश्योरेंस रेगुलेशन ना होता है, आईआरडीए करती है, तो थर्ड भी गलत हो गया। थर्ड गलत ही है तो बी वैसे भी गलत हो गया, है ना? वेरी गुड। इसमें से हरियाणा के लिए तो हरियाणा स्पेसिफिक हो गए, हरियाणा स्पेसिफिक हो गए। ये इकोनॉमिक्स, नो 5-year प्लान वाज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लेट 1960s, करेक्ट है। टैक्स हॉलिडे, वो प्लान हॉलिडेज थी ना,
Very good. Indo-Pakistan conflict, drought, inflation erased the financial resources required for planning. अब ये डिपेंड करता है क्या मान के चले। अब हमें तो नहीं पता ना प्लान क्यों नहीं आया था, हम लोगों को तो यही पता है कि उस टाइम पर बिकॉज ऑफ दी सर्कमस्टेंसेस प्लान अवॉइड किया था। अब ये नहीं पता कि पैसे नहीं थे इसलिए प्लानिंग नहीं करी। ठीक है, हमें तो हमारे हिसाब से, लेकिन ऑप्शन है ही नहीं, आर इज फॉल्स। बोथ ए एंड आर वाला है, खाली आर इज फॉल्स ऑप्शन नहीं है। सर इसका ए होगा। ए या बी में से होगा, ए या बी ए में से होगा बिकॉज इकोनॉमी की क्लास में सर ने बताया था इसका। ठीक है, फिर तो ए होगा। मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, इनमें से खरीफ क्रॉप कौन कौन से हैं, इसको याद करने का तरीका बताएंगे आज आपको, बहुत बढ़िया वाला। खरीफ क्रॉप कौन कौन से इनमें से, खरीफ पता है कौन से होते हैं? So B. बी, बी 2 5 6। वीट खरीफ है नहीं, ठीक है, तो ए और सी तो गया। पैडी यानी कि राइस खरीफ है, यस। मस्टर्ड खरीफ है कि नहीं, मस्टर्ड खरीफ है कि नहीं, नहीं पता है ना, नहीं पता। वेरी गुड। ग्राम, ग्राउंडनट, मेज। अब फर्स्ट तो गया, सेकंड, फोर्थ, सिक्स, सेकंड, थर्ड, सिक्स। वेरी, अब याद करने का तरीका होता है, मस्टर्ड जीवन में कभी नहीं भूलना। जेड। अरे बी आंसर हो गया, ठीक है, राबी है मस्टर्ड, राबी है, कभी नहीं बोलोगे जीवन में, आज याद कर। डीडीएल जो देखी है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखी कि नहीं देखी है? अच्छा, राज और सिमरन जब मिलने जाते थे कौन से खेतों में जाते थे, ये तो पता होगा। कौन से खेतों में जाते, कौन से? मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड मतलब सरसों, ठीक है, वेरी गुड। उन खेतों में जब बाबूजी जाते थे कबूतरों को दाना डालने, शॉल पहन के जाते थे, याद है ना, शॉल पहन के जाते थे। या फिर राज ने लेदर की जैकेट पहनी थी, लेदर जैकेट तो सर्दियों में पहनेगा। एक्ट्रेस तो स्नोफॉल में भी नहीं कपड़े वो मतलब वो नहीं पहनते हैं, तो एक्टर तो उस जमाने में उनको ठंड नहीं लगती थी। तो आज भी आप जैसे वेडिंग सीजन आएगा ये सब समझ सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू फैशन, ठीक है, सबसे खतरनाक हीट इंसुलेटर क्या होता है इंडिया में? शादियां, ठीक है। अगर ठंड से रक्षा करनी है तो शादी का कार्ड दे दो, बेकार कंबल अंबल देते हो आप किसी को, है ना। तो सरसों मतलब राबी, समझ में आ गया, राबी क्रॉप है मस्टर्ड, हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो मस्टर्ड इज अ राबी क्रॉप। ओके, वेरी गुड। ये साइंस आ गया, हिस्ट्री आ गई, हमें नहीं पता टाइम, ये सब क्विक लाइम केमिस्ट्री देख लेना। वॉशिंग सोडा, ओहो 84th देखो, which of the following statement is true about washing soda? Its chemical name is कुछ कुछ, केमिकल नेम किस किस है। तीसरा, it is used for raising cakes while baking, ना बेकिंग के लिए। कभी केक, झाग वाले केक तो नहीं खाए होंगे ना, है ना। तो थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, आंसर विल बी 2 and 4, ठीक है। वेरी गुड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव pH लेस देन 7, यानी कि एसिडिक कौन कौन सा है, ठीक है, बताइए आंसर। 85th बी, 1 3 and 4। वेरी गुड। किसी ने आप में से कोई कॉफी पीता है, आप में से कोई कॉफी पीता है, कभी कॉफी पी के एसिडिटी हुई है? हाँ, नहीं हुई है। ब्लैक कॉफी पिए कभी? यस सर, उससे हो मतलब जैसे उसमें कैफीन रहती है तो उससे तो होना चाहिए ना, एल्कलाइन बेस तो होगी नहीं वो। हो जाती है तो कॉफी से क्यों नहीं हो रही है? टी कंज्यूम करने से एसिडिटी होती है, सब है, सबका pH लेस देन 7 है, सबका pH 7 है। हाँ जी, कॉफी में अगर पीएच कम होगा तो वो थोड़ी खट्टी सी नहीं टेस्ट करेगी? अच्छा मिल्क, आपको पता है मिल्क, मिल्क का भी तो pH 7 से
नीचे होता है। मिल्क क्या खट्टा टेस्ट करता है? तो फिर कहते हैं अब तो ये पनीर लायक हो गया, अभी बड़ा हो गया पनीर बनेगा, है ना। मिल्क में तो लैक्टिक एसिड होता है ना। जूस भी कहाँ खट्टा होता है? एप्पल जूस के हमने नहीं सोचा, एप्पल जूस भी कहाँ खट्टा होता है? तो बोलते हैं सर ना उसमें फिर। सर उसमें चीनी मत डालिए, वो खट्टा होता है। कहाँ एप्पल खाते हैं, कहाँ में खट्टा फील हुआ? सर वो कच्चे एप्पल होते हैं जो खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं, ठीक। एप्पल सबको खट्टे एप्पल एप्पल के बारे में सबको है, ठीक है। समझ में आ गया। लिक्विड इन द कार बैटरी सबको पता है एसिड होता है ना। केमिकल्स होते हैं, एसिडिक जो HCl होता है पेट में भी, एप्पल जूस में भी सब समझ गया एसिड होता है। कॉफी की गलती, और यू पता था देखो HPSC को या जो भी बॉडी कंडक्ट कर रही है, क्या है कि स्टूडेंट कॉफी को ही हटा के 1 3 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। क्यों है, एसिड थोड़ी पीते हैं, लेकिन एप्पल जूस भी तो है। समझ में आया? कंडक्टर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। सिल्वर। सिल्वर, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो। द डेप्थ डिटरमाइंड बाय यूजिंग सोनार। थोड़े दिन पहले लिडार जब पढ़ाया सोनार भी बताया था कि उसमें साउंड छोड़ते हैं और वो डेप्थ नाप के लिए आता है, याद है? वेरी गुड, क्वेश्चन करिए। So B. बी। डी। डी, दिल्ली, बॉम्बे? बॉम्बे। बॉम्बे। इट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स, बिल्कुल सही है, फर्स्ट तो करेक्ट है। द टाइम ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स सी वाटर सेम एज द साउंड ऑफ एयर, ठीक है। अच्छा, इसका सिंपल लॉजिक, अगर सेम स्पीड होगी, साउंड तो बहुत स्पीड से ट्रैवल नहीं करती ना। और ऐसे डेप्थ डेप्थ है उसकी 1.5 किलोमीटर, आपकी साउंड को 1.5 किलोमीटर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? काफी टाइम लगेगा ना। तो इसका मतलब उसकी स्पीड तेज ही होगी। ओके, चिल्ला के देख लेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 88th ये डिजीज है, इसमें इनको समझना चाहिए, क्वेश्चन है। बैग क्यों खराब है? बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, सिंपल, है ना। एक पेशेंट को क्या दिया है? प्रोबायोटिक्स दी है। तो क्यों, क्या होता है प्रोबायोटिक्स? हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। डॉक्टर ने रिकमेंड किया आरटीपीसीआर, ये तो क्वेश्चन क्लास में पूछा था। हाँ जी, बता दे तो क्लास में एग्जैक्टली डिस्कस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्लास ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमको ये भी याद है की फर्स्ट क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एग्जैक्टली डिस्कस्ड क्वेश्चन है। आंसर बताइए। सर सी। सर आरएनए वायरस। सी। सी सर। वेरी गुड, एक डिस्कस किया था, ये तो बता दो। हाँ, कुछ लोग बता दो। हाँ, किया था। Yes, sir. नुब्रावेल ज्योग्राफी, डिप्सांगप्लेन ज्योग्राफी। झूम, झूम कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं झूम कल्टीवेशन। झूम, सी, 1 का सी, एक ही ऑप्शन है, हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। अरे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट लैंडलॉक्ड स्टेट विद नो इंटरनेशनल बॉर्डर? ये करके दिखाओ। Sir D. डी, वेरी गुड। Delhi. गुजरात, पाकिस्तान, आसाम, बांग्लादेश बॉर्डर, गुजरात पाकिस्तान बॉर्डर, हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया? हमको नहीं पता, ज्योग्राफी वालों का है। झेलम हो, कश्मीर, ये भी ज्योग्राफी वालों का है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट? तो सिंपल है, अफगानिस्तान के भूमि एंड बुद्धा, न्यूज में भी था, भूमि एंड बुद्धा। यूपीएससी से क्वेश्चन है ये सारे, यूपीएससी के पास अगर आपने करे हुए हैं तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। चिकनकारी कहाँ का है? यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। ओ सॉरी, हाँ, यूपीएससी का में भी आ चुका है। यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है, कलर एम्ब्रॉयडरी कहाँ होती है? Sir B. Bombay.
बी बॉम्बे, बी का 4, वेरी गुड कलमकारी आंध्र प्रदेश, बी का 4 एक ही ऑप्शन है, वेरी गुड। भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? कुछ कथक कहाँ का है, कुछ मोहिनीअट्टम कहाँ का है? सर सी। सी, वेरी गुड। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ए का 2, कथक यूपी, बी का 1, सी हो गया। वेरी, ये हरियाणा से ज्यादा यूपी का पेपर लगे, यूपी के ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने, यूपी के ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया था ऐसा लग रहा है। हाँ जी, आज का पेपर करके क्या समझ में आया? हमें समझ में क्या है? ऑप्शंस पूरे पढ़ने हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। हाँ, पढ़ना है, और इसका मतलब जो हम पढ़ रहे हैं हम लोग सही पढ़ रहे हैं। क्या आपको ऐसा फील हुआ कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग सही पढ़ रहे हैं, हम वी आर इन दी राइट डायरेक्शन? इतने सारे हमने क्वेश्चंस देखे। मनीष, अगर आप काउंट कर रहे हो कंटिन्यू, 50 प्लस तो हो गए। फिफ्टी तो क्वेश्चंस हो गए होंगे नोट से ही, ठीक है। हाँ जी, तो यानी कि पेपर क्लियर करने के लिए हमारा मटीरियल, सर वॉइस ब्रेक हो रही है। we do not extra material. If we revise that material only, we'll be through. Okay, if we revise that material only, we will be through. Are we clear with Sir, that? सर जब पेपर कर रहे हैं बैठ के तो गलत बहुत हो रहा है, मतलब उनको छोड़ा नहीं जा रहा है उनको, जबकि डाउट है उसको छोड़ना ही बेटर है। देखिए, हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। पहले सही कितने हो रहे हैं ये बताइए, सही कितने? सर आउट ऑफ टोटल सर अराउंड 60 सही हो रहे हैं, 60 to 70। है सही? सर 70 सही हो गए तो 30 भी रॉन्ग हो एक गए तो कोई बहुत- दिक्कत नहीं आएगी ना? अगर आवाज कट, सर अगर बेटा 70 सही 70 हो गए वही, तो अगर आपके सही हो, अगर 70 सही हो रहे हैं तो आप 120 मार्क्स ला रहे हैं। सर लेकिन यही सर इतने दिक्कत नहीं है हो रहे ना, ना वो सर। मतलब पता नहीं गलत कितने हो जाएंगे। सर 70 सही भी तो नियरली कर लिए। 40-45 के बीच में वेरी कर रहा है स्कोर, मतलब सही वाला गलत काट के। अब देखिए, अगर आपको पता है कि हमारे इतने तो शॉर्ट सही हैं, तो आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको मोर देन 40 क्वेश्चंस नहीं है ऐसे जिसमें आपको पता है कि शॉर्ट सही है, ठीक, तो रिस्क थोड़ा कम लीजिए। हम क्या करते हैं, जो से एक सही है ना, उसके अलावा जो क्वेश्चंस कुछ ऐसे जो हमें बिल्कुल देखते ही छोड़ देने चाहिए, हम उनको अटेम्प्ट करते हैं। देखते ही छोड़ देते, बस उनको को नहीं करना है, अपने आप को बहुत रोकना है। एक अच्छा तरीका है रोकने का उस क्वेश्चन को, तब आप मार्क हम बार फर्स्ट पे ओनली, फर्स्ट स्टेज पर ओनली शॉर्ट क्वेश्चन मार्क है कि इनमें से कौन सा थ्रो। सर वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। सर आप थम से भी गए हो। अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ जी। हाँ तो वो जो एंटीबॉडी वाला क्वेश्चन है, दैट इज नॉट अ शॉर्ट क्वेश्चन। आप उसे मार्क करके अपने शॉर्ट क्वेश्चन में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता उसका आंसर 100% वही है। दैट इज अ डाउटफुल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को हमें रिस्क लेने में फर्स्ट चॉइस नहीं मानना है।
ओके तो वही प्रैक्टिस है, दिस इज द ओनली प्रैक्टिस। एक ना पेपर ऐसे आपको सजेशन देते हैं, एक पेपर हमें सिर्फ ये करना है कि हमारे मिनिमम रॉन्ग, नॉट मोर देन दी 10% ऑफ, मतलब वी हैव ट्राई टू अचीव 90%। इफ वी हैव अटेम्प्टेड 70 क्वेश्चंस, not more than 7 questions should be wrong. Try such a manner, so you will understand where you are making a mistake. Okay, where you are making a mistake. Do a paper where you have to minimize your negatives, because if you are doing 60 correct, if you are doing 60 correct and 5 wrong, then also you will be through. But if you are doing 60 correct, 40 wrong, you will not be through. Then you will be less than 100. सीसाइड कर लेते हैं, चलो अब कंफ्यूजन हो रहा है। 60 करेक्ट, 40 रॉन्ग, 40 डिवाइडेड बाय 3, 13 रॉन्ग, 47 से लेस, 47 into 2, 94 से लेस, you will be 92.3 or 93.33 marks exactly. If you're doing 60 correct and 40 wrong, so your way of giving paper should be determining how you are attempting. If you are wrong is, if you are making so many wrongs, try to reduce your wrongs. ठीक है? 30 wrong is not wrong if you are attempting 100 questions. If you are doing 70 correct and 30 wrong, then it is not a lot. Then it is not a lot. Okay? कालाधन मल्टीमोडल प्रोजेक्ट which of the following countries? ये तो कर लिया होगा, ये तो कर लिया होगा कालाधन वाला। मनीष? म्यांमार है सर। हाँ हाँ, नहीं तो कर लिया होगा बिल्कुल आराम से। नेटवर्क इशू या हाँ जी ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं विद टुडेज लेक्चर। So we are beginning with international relations. We'll be quick in reading international relations. We'll be quick, okay? Because international relations is not clearly specified in the syllabus. So the basic questions won't be there. Only the current questions will be there, okay? International relations is not clearly specified in the syllabus. That is why the basic questions will be there. Now, United Nations Security Council. Biden has continued to remain non-committal. It means Biden has not made it clear whether they will be supporting India's bid to the United Nations Security Council's membership. Okay. So for that, you need to know about United Nations Security Council. Do you know about UNSC? United Nations Security Council is a part of United Nations. It is one of the 6 principal organs of UN. So for that, you need to know the 6 principal organs of UN. Please tell me the 6 principal organs of UN. 6 principal organs of UN. Very good. 1. आपके लिए हेल्प कर देते हम 1 2 3 4 5. ठीक है, हिंट है 6 ऑर्गन्स है। अब बताइए 6 principal organs of UN. Yes, guys. हम नहीं बताएंगे, है ना? रिवीजन करा होता तो उसका आंसर आप दे देते। अगर नोट्स, करंट के नोट्स का रिवीजन किया होता, लेकिन अगर हम नोट्स रिवाइज करेंगे तो शायद सिलेक्शन हो जाए, है ना? और हमें नहीं चाहिए वो। वेरी गुड।
हाँ जी, अरे एक तो आंसर बता देते, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने लिखा हो वो तो आंसर है ही, अभी अभी तो बताया है, दैट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। तो पहला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, थर्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फोर्थ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिफ्थ सेक्रेटेरिएट, and sixth trusteeship council. These are the 6 principal organs of UN. इसके अलावा कुछ भी है that is an specialized agency, WHO, UNDP, WTO, WMO, whatever name you hear, that will be a specialized agency. It will not be a part of the 6 principal organs of the UN. Are we clear with this? Are you clear with this? So that you don't get confused. Now, United Nations Security Council, it was established along with the UN, where it is having 5 permanent members. Which are the permanent members? What are the P5? What are the P5? UK, USA, China, Russia. And फ्रांस। France. 5 permanent members हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? हमें क्या इंडिया। मतलब नॉन परमानेंट? अरे नॉन परमानेंट है, चेंज हो जाएंगे, सीधी बात। बस हमें पता होना चाहिए इंडिया इज द पार्ट ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स राइट नाउ, ठीक है। एक पीसीएस से पूछ लेते हैं विच अलोंग विद इंडिया और कौन कौन से नए मेंबर ऐड हुए हैं, ठीक है। तो ये हम पूछ लेते हैं। अब यूएनएससी के रिफॉर्म्स के लिए कौन कौन से ऐड हुए याद कर लेना, नाइजीरिया, आयरलैंड, मैक्सिको, ये 3-4 है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फैक्टर यूपीएससी आप पूछता नहीं है, स्टेट में पूछते हैं। लेकिन अगर स्टेट के पेपर अच्छे आ रहे हैं तो यूपीएससी का पेपर हो सकता है फैक्चुअल आ जाए, यू नेवर नो। मतलब हम तो अलग रहेंगे, हम स्टेट हमारे जैसा बन रहा है तो हम स्टेट के जैसे बन जाते हैं, है ना। वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब G4 क्या है? G4 क्या है? कुछ ना ग्रुप्स है दैट वांट द रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देयर आर सर्टेन ग्रुप्स दैट वांट्स रिफॉर्म इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें पहला है G4। G4 के मेंबर्स कौन कौन से? ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। याद करिए, क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी में, ठीक है। G4 के मेंबर्स कौन है? ब्राजील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान। इन्हीं के अगेंस्ट एक ग्रुप है कॉफी क्लब, जो चाहता है जो रिफॉर्म्स हो वो इनके हिसाब से हो, ना कि G4 के हिसाब से, ठीक है। इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है? अर्जेंटीना, ठीक है, ब्राजील के अगेंस्ट अर्जेंटीना, जापान के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ओके, जापान के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, देन जर्मनी के अगेंस्ट कौन है? इटली, एंड इंडिया के अगेंस्ट कौन है? पाकिस्तान, ओके। तो द मेन मेंबर्स हैं इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना एंड पाकिस्तान। कॉफी क्लब, ओके। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हर साल
एक प्रेसिडेंट चूज होता है। इस साल मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर जो है वांटेड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको इंडिया ने सपोर्ट किया है। ठीक है, इसको इंडिया ने सपोर्ट किया, इसीलिए ये न्यूज में है। आपको नोट्स प्रोवाइड किया है व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ यूएनएससी। जब हमने आईआर पढ़ा था तो उसको अच्छे से पढ़ा ही होगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रेसिडेंसी इज फॉर एवरी ईयर, एनुअल प्रेसिडेंसी है। सेकंड, एवरी मेंबर ऑफ यूएन इज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आप फॉर एग्जांपल यूएन के मेंबर बन गए, ठीक है, यूएन के मेंबर बने तो इनमें से किसके मेंबर बने? जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स बनाया बताया था हमने, इनमें से किसके मेंबर बने आप? हमने बोला घर पे स्टेटस लगा दिया, नाउ ए यूएन मेंबर, ठीक है, स्टेटस लगा दिया, लेकिन कहाँ के मेंबर बने? जैसे इलेक्शन हुए ना, इलेक्शन के बाद कोई एमपी बन गया, क्वेश्चन आता है कहाँ के एमपी, है ना, समझ में? उसमें कुछ लोग जवाब देते अरे विधानसभा के एमपी बन गए, है ना, कुछ लोग जवाब भी देते हैं विधानसभा के एमपी बने। सर अगर यूएन के मेंबर है तो फिर वो तो सबके ही हो गए ना, या ना, कहीं स्पेसिफाइड? अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन क्यों बनता? अंकित, हाँ बेटा डाउट है? डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन जेन्युइन है, कहाँ के मेंबर बने? वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर बनते हैं। ठीक है, जैसे कि एमपी के इलेक्शन के बाद जब आप वोट करते हैं तो कोई एमपी कहाँ के बनते हैं? लोकसभा के। ठीक है, ऐसे ही ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर बनते हैं। हर साल रोटेट होती है, एक साल जो है प्रेसिडेंसी अफ्रीकन रीजन से, एक साल एशिया पैसिफिक, एक साल ईस्टर्न यूरोपियन, एक साल लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन, एक साल वेस्टर्न यूरोपियन अदर स्टेट। कोई भी डिसीजन जो होते हैं यहाँ पर जो है, बड़े बड़े डिसीजन 2/3 मेजोरिटी से, छोटे छोटे डिसीजन सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, चार्टर है, फंक्शन है, ये देख लीजिएगा। अभी 42nd सेशन हुआ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, एफएओ का सेकंड 42nd सेशन हुआ, ये वर्चुअली हुआ। ठीक है, वर्चुअली हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इट वाज हेल्ड वर्चुअली। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो सेशन है ये हर 2 साल में होता है। ठीक है, इट इज कंडक्टेड एवरी 2 years। इसका काम क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर इश्यूज के बारे में अपना डिस्कशन करना। ठीक है, फॉर दैट दे रिलीज स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। इसमें ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट दैट व्हाट 4 betters इज एसोसिएटेड विद। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इसका रेट हम ज्यादा रखेंगे और क्वेश्चंस वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है, और ये तो अब मानने लग गए क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तो आपको दिखाया है साक्षात बैच में चलते हुए। ठीक है, वरना तो बात होते हैं अरे ऐसे तो सब कह देते हैं हमारे नोट से आया है। ठीक है, हमने कभी नहीं बोलते ना आप बोलेंगे कि हमारे नोट से पूरा पेपर आता है। हम बस ये बोलते हैं कि हमने पास्ट के पेपर्स ट्रेंड एनालिसिस करके हम आइडिया लगा सकते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं, है ना। और आपको दिखा थोड़ी मार्केटिंग तो कर दोगे ना हमारी कि हाँ ये जो पढ़ाते हैं वो पेपर में वैसे क्वेश्चन उसके आसपास आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम लोगों के पास मार्केटिंग इतना हाई बजट नहीं है कि हम टी पैड बनाए। ठीक है, शाहरुख खान को पढ़ाई के रिप्रेजेंटेटिव बनाए, है ना, हमारे पास नहीं है इतना, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ जो पढ़ते हैं उन्हीं को रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, हम सेलेक्टेड कैंडिडेट ला सकते हैं, है ना। बैजू या कोई और ग्रुप में शाहरुख खान प्रमोट करते हैं बिकॉज दे हैव वेरी हाई बजट। हम लोग मार्केटिंग सिर्फ अपने क्वालिटी से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपने एक्सपीरियंस किया आप अपने सर्कल में शेयर करें। ठीक है, सर्कल में शेयर करें। वेरी गुड, चलें आगे।
4 better से रिलेटेड टू व्हाट क्वेश्चन आता है तो क्या आंसर होगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन सिंपल आएंगे, उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा आईआर से। रीजन क्या है? इट इज नॉट इन द सिलेबस, इट इज ओनली पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। FAO is the part of the 6 principal organs of UN. FAO is the part of the 6 principal organs of UN. True or false? False. 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 क्यों? False. हमने अभी अभी पढ़ा 6 के नाम, उसमें FAO नहीं था। So it is what? It is a specialized agency. It is a specialized agency. It is one of the UN Food and Aid organizations. ठीक है, इसकी सिस्टर बॉडीज कौन सी है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। व्हाई? क्योंकि नोबेल पीस प्राइज मिला है उसको 2020 में, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। दिस वाज आल्सो इन न्यूज रिसेंटली, लेकिन आपका पेपर बन चुका है इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये न्यूज में था रिसेंटली, लेकिन पेपर अभी तक बन चुका हो। ओके, फूड डे कब बनता है? 16 अक्टूबर 1945 में ये बना था। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अवेयर प्लेटफॉर्म किस लिए बनाया गया? क्वेश्चन आएगा कि यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म इज फॉर whom? So it is for the UN peacekeeping. ठीक है, it is for the use of technology for the UN peacekeeping forces. Unite platform is for the use of technology for UN peacekeeping forces. Okay, UN peacekeeping forces. Is India part of it? Yes, India is a part of it. UN peacekeepers को इंडिया ने 2 लाख वैक्सीन भी प्रोवाइड करी है। इंडिया इज प्रोवाइडिंग 2 लाख वैक्सीन टू UN peacekeeping forces. Okay, so that they also get the humanitarian assistance. ये भी न्यूज में है। There is a resolution, ठीक है, there is a resolution where the UNSC started the debate on resolution 2532. 2532 किस लिए था? So that the world can have established peace and provide a 90-day ceasefire for the distribution of humanitarian assistance. इसे UN peacekeepers के लिए है। You know what are UN peacekeepers? These are the peacekeeping forces of the United Nations that wants to establish peace. That wants to establish peace. You remember Donald Trump? You remember Donald Trump? Okay, he cut funding of the various organizations. He was saying that I will not give money to this, that. Amongst that organization, WHO was also a member. It was also an organization. Okay, so now the new president has said that they will be providing this much money to the WHO. It means they will not be ending the funding of WHO. That is why it is in news. So you can read about WHO. Okay, very good. WHO को फंडिंग कहां से मिलती है? ये पढ़ने की जरूरत नहीं, ये पढ़ लो। कोवैक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोवैक्स? COVAX, what do you understand by COVAX? It is a new vaccine being developed for COVID. हाँ, नहीं, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, स्टार मार्क कीजिएगा। कोवैक्स इज अ co-convened by Coalition for Endemic Preparedness, Gavi and the Vaccine Alliance and the World Trade Organization. क्या है ये? It is a group that is working in partnership with UNICEF as key implementing partner. It is the only global initiative that is working with the governments and the manufacturers to ensure COVID-19 vaccines are available worldwide in both higher and lower income countries. ठीक है, it is a collaboration for the availability of COVID-19 vaccines. ठीक है, ये कोई वैक्सीन नहीं है, कोवैक्स याद रहेगा। COVAX, it is not a vaccine, it is a vaccine availability initiative. WHO funding इसी में साथ में WHO Biohub initiative has been introduced. WHO Biohub initiative has been introduced with which country's government? With which country's government? बताइए। WHO
biohub initiative is introduced with the collaboration of which country's government? सर यहाँ लिख रहा है वही. वही है बिल्कुल, स्विट्जरलैंड. ठीक है, इट इज इंट्रोड्यूस विद स्विट्जरलैंड. इसका काम क्या है? रैपिड शेयरिंग ऑफ द डेटा सो दैट द changes or the variants of the COVID-19 can be informed. The changes and the mutations of the COVID-19 can be informed to the other places and they can share the data and the laboratories. Okay, so it is the biohub initiative. So it will act as a hub for all the details related to the COVID-19. Okay, it is between Switzerland and WHO. Now, world leaders, there is a meeting that will be discussed to ensure what will happen after the UN assistance mission in Afghanistan is over, because that mission will be over by 17 September 2021. So what is this? There was an agreement for the development in the Afghanistan. That agreement was called as Bonn Agreement. So the question may come, Bonn Agreement is related to what? Bonn Agreement is related to the United Nations Assistance Mission in Afghanistan. ठीक है, इसके अलावा इतना मैटर मिल गया है इनको अफगानिस्तान में पूछने के लिए, तो दिस हैज नॉट रिमेन टू मच ऑफ इम्पोर्टेंस. ठीक है, चाइना के न्यू मैरीटाइम रेगुलेशन आए. चाइना ने क्या बोला है? कोई भी शिप बहुत ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है. तो चाइना इतना ही, क्योंकि हम लोग को डिटेल में तो जाना नहीं है, हम लोगों को बस आइडिया है कि कहां से क्या है. तो चाइना ने बोला है फॉर इंश्योरिंग द न्यू रेगुलेशन which considers as the 9-10 as the territory, they have to give their details. उन्हें क्या क्या डिटेल्स देनी होंगी? They have to give the details of the name of the ship, call sign, current position, next port of call and estimated time of arrival, so that there is no danger to the maritime security of China. ठीक है, न्यू गाइडलाइंस इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है. ये गाइडलाइंस आर इन द वायलेशन ऑफ अनक्लॉज. अनक्लॉज के हिसाब से हर कंट्री को अपने अपना जो है टेरिटरी को मैनेज करने का मौका मिलता है. अनक्लॉज के हिसाब से दीज आर द टेरिटरीज फ्रॉम द बेस लाइन टू 12 नॉटिकल माइल्स, इट इज territorial waters. From 12 nautical miles to the 24 nautical mile, it is the contiguous zone. From this region, that is the baseline, to the 200 nautical miles, that is the exclusive economic zone. याद रखिएगा, EEZ is calculated from the baseline, not from the end of the contiguous zone. This is the UNCLOS rules. Nuclear disarmament. United Nations General Assembly adopted 2 resolutions which are sponsored by India. ठीक है, ये इंडियन इंट्रोड्यूस है और इंडिया ही स्पॉन्सर इनको करता है. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कौन कौन से? कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. फर्स्ट, ये क्या करेगी? इट इज टू रिड्यूस एंड एंड the use of the nuclear weapons, and second, reducing nuclear danger. Reducing nuclear danger is to reduce any danger due to mishappening of the storing of the nuclear weapons or any accident due to the nuclear weapons that are with the countries. So these are the two resolutions. First, convention on the prohibition of the use of nuclear weapons, and second, reduce nuclear danger. There are some treaties regarding the nuclear disarmament. First is NPT, Non-Proliferation Treaty. Second is CTBT, Comprehensive Test Ban Treaty. Third is Prohibition of Nuclear Weapons. This is called as New NPT. ठीक है, इंडिया तीनों में से किसी का मेंबर नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं. कौन सी कंट्रीज हैं विच आर पार्ट ऑफ एनपीटी? देख लीजिए, यूएस, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल. ठीक है, दे आर अगेंस्ट द ट्रीटी, दे डिड नॉट सपोर्ट इट. बाय डिफॉल्ट यही कंट्री है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, बस यही कंट्री है. तो इसका मतलब, मान लीजिए हमने एक पार्टी बनाई कि हम जो है सब लोग कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे जिससे कोविड ना फैले, और उसमें कौन कौन? हम तो खुले में घूमेंगे, हमें कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है. ठीक है,
समझ में आया? कोई दिक्कत बातचीत? कौन कौन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है? ये यूपीएससी क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज अ यूपीएससी क्वेश्चन। कौन कौन सी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं बताओ? एज पर एनपीटी which all countries are the nuclear weapon state? Give me the answer. बताइए बच्चों, as per NPT which all the countries are nuclear weapon states? आंसर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की, बताएंगे ना? अनम्यूट कीजिए अपने आप, बताइए, या फिर लिख दीजिए, बोल बोल के थक गए तो लिख दीजिए। यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, नहीं इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। नहीं, इंडिया है एंड इजराइल। बेटा। अगर इंडियन न्यूक्लियर वेपन स्टेट होता ना एनपीटी के हिसाब से, तो इंडिया साइन कर देता एनपीटी। हमने एनपीटी साइन इसलिए नहीं करी कि हमें न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं मानते हैं। तो एनपीटी के हिसाब से न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो है 5 हैं। वो जो P5 हमने पढ़े थे वही 5 है। ठीक है। डी फैक्टो न्यूक्लियर वेपन किस किस के पास है? इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ये 4 डी फैक्टो, मतलब इनके पास है लेकिन ये वर्ल्ड ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज। ठीक है, वेरी गुड। तो ये वाली ट्रीटी है। रशिया और यूएस के बीच में एक ट्रीटी है जिसको बोलते हैं स्टार्ट, न्यू स्टार्ट। ठीक है, जी, स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, स्टार्ट 1, ये सब ट्रीटीज हैं ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बिटवीन रशिया एंड यूएस से। बस ये पता होना चाहिए, यूपीएससी क्वेश्चन है, भी पास्ट ईयर। स्टार्ट 1 इज अ ट्रीटी बिटवीन, बल्कि पास्ट ईयर अभी 1-2 साल पहले आया ना, शायद रिसेंटली भी आया है। यस सर। तो बस यही आता है क्वेश्चन कि ये किसके बीच में है। तो दीज आर बिटवीन रशिया एंड यूएसए। ठीक है, रशिया एंड यूएसए। अब क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डीप कार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव, दिस इनिशिएटिव इज बिटवीन, किस किस का इनिशिएटिव है? दिस इज अ इनिशिएटिव ऑफ इंडिया विद यूनाइटेड किंगडम, इंडिया विद यूनाइटेड किंगडम। सो क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डीप decarbonization initiative is a global coalition of public private organization for the low carbon industrial materials. इसमें इंडिया, with whom India is collaborating with United Kingdom. ठीक है, it is coordinated by UNIDO, it is coordinated by UNIDO, ठीक है, and co-led by UK and India, UK and India. इसका काम क्या है? कार्बन इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल को कम करना है, कार्बन इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल को कम करना है। इसमें आपको दिया गया व्हाट इज द रोल ऑफ यूनिडो, उसको एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया की जो टर्म थी 2020-21 के लिए, वो खत्म हो चुकी है। इंडिया को जो चेयरमैनशिप मिली थी, इट वाज आफ्टर 35 इयर्स, इसलिए आपको आईएलओ के बारे में पता होना चाहिए। आईएलओ में इंडिया ने सारे जो आउट ऑफ द 6 कन्वेंशन साइन किए हैं, 7th और 8th इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी। कौन कौन सी के नहीं है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, एंड सेकंड राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये 2 कन्वेंशन है जिसका इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, बाकी सब इंडिया सिग्नेटरी है। चाइल्ड लेबर इंडिया ने साइन कर लिया था, व्हेन इट वाज इन न्यूज, तब क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, जब इंडिया ने साइन किया था तब दैट वाज अ यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। अभी बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी इन म्यांमार, सम पीपल एंटर्ड इंडिया, some people entered India. तो जो हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर है, उन्होंने बोला है कि नाउ दे विल बी सेंट टू दी they will be sent to Delhi to seek protection from United Nations High Commissioner for Refugees. ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इंडिया though is not a signatory of the United Nations Refugee Convention and the any convention that is related to the UNHCR for refugees, but India has Article 21 that protects the right to life, that is available for all, for aliens also and citizens also. इसलिए इंडिया ने बोला इनको प्रोटेक्ट करना है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज के बारे में जानने के लिए ये पढ़ लीजिए कि इट इज अ रिफ्यूजी एजेंसी, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, नोबेल पीस प्राइज मिला 1954। ठीक है,
ओके, वेरी गुड, आगे चलें। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इंडिया ने श्रीलंका के अगेंस्ट वोट करने से एब्सटेन कर लिया है। देयर वाज अ रेजोल्यूशन regarding the crimes against humanity by श्रीलंका ड्यूरिंग द तमिल सिविल वॉर। इंडिया ने उस वोट से एब्सटेन किया है, ठीक है। तो उसके लिए आप एक बार यूएनएचआरसी के बारे में पढ़ लीजिए। यूएनएचआरसी कुछ नहीं है, एक यूएन की स्पेशलाइज्ड बॉडी है, ठीक है। यूएन की स्पेशलाइज्ड बॉडी दैट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके जो भी जितने भी रेजोल्यूशन होते हैं दे आर नॉन बाइंडिंग, ये जानना है, द रेजोल्यूशंस आर नॉन बाइंडिंग। ईरान ने बोला था कि अब उनकी टर्म एक्सपायर हो गई है, जो आईएए के साथ के न्यूक्लियर एरियाज में इनका जो सर्वेलेंस था, लेकिन आज दोबारा उन्होंने बोला है कि मेमोरी कार्ड रिप्लेस करो कैमरेज में और दोबारा सर्वेलेंस स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आज लेटेस्ट उन्होंने बोला सर्वेलेंस स्टार्ट कर दो, तो इसलिए न्यूज पुरानी हो गई है ना। लेकिन हमें आईएए के बारे में जानना है। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957, एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। It is not under the direct control of UN, but it reports to both UNSC and United Nations General Assembly. So it is not under control of UN, लेकिन it sends a report. It does much work with UNSC and not with Economic and Social Council. इसका काम क्या है? It is to promote the peaceful use of nuclear energy. Its headquarters are in Vienna. Nobel Peace Prize मिला था इनको in 2005. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज मिला है, इसीलिए न्यूज में आपको जानना है इट इज द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फूड असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है। इट इज द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ यूएन, इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी एंड इट वर्क्स along with FAO, it works along with the Food and Agriculture Organization. India 1963 से मेंबर है and India is working towards the UN food program. यहाँ तक कोई दिक्कत? नए WTO में डायरेक्टर जनरल आई हैं, पहली बार विमेन है, ठीक है, एंड पहली अफ्रीकन है। नाम क्या है? ngozi okonjo-iweala। कहां से है? नाइजीरिया से है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल क्या होता है? WTO का हेड ऑफिसर होता है ऑफ द WTO। WTO क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995। इट वाज अर्लियर कॉल्ड एज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ UN, बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट एन एजेंसी ऑफ UN। The agreement through which WTO was established was called as Marrakesh Agreement. Different rounds are there in WTO, amongst which important rounds are Uruguay round, Doha round, Bali round. India is a member of WTO since its foundation. Okay, dispute settlement body भी होती है जिसका इंडिया मेंबर, मतलब WTO का इंडिया मेंबर है तो डिस्प्यूट सेटलमेंट का भी मेंबर इंडिया रहता ही है। यहाँ पे एक अपीलेट बॉडी भी रहती है जो अगर आपको डिस्प्यूट नहीं समझ में आया कि सेटलमेंट कैसे हुआ है इसके लिए अगेंस्ट अपील करे। देयर इज अ पीस क्लॉज इन WTO, जो भी सब्सिडी दी जाती है दैट सब्सिडीज हैज टू बी लिमिटेड। आप अपनी कंट्री में एक लिमिट से ज्यादा सब्सिडीज नहीं दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ द पीस क्लॉज। लेकिन इंडिया ने बोला कि हम जब तक कोई और मेथड नहीं निकाल लेते तब तक हम पीस क्लॉज को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। हम तो बोल रहे हैं नोट से क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, हम जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो एनालिसिस करते हैं और वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डायरेक्टली बात वही बोल रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हमारे नोट से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम भी तो न्यूज़पेपर से नोट्स बनवाते हैं, है ना। क्वेश्चन तो एक्चुअली न्यूज़पेपर से आते हैं या न्यूज से आते हैं, बस ये कि हम लोग वाली न्यूज पढ़ते हैं। ओके, पीस क्लॉज के बारे में बता दिया है। 3 टाइप की सब्सिडी होती है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, पेल के दो, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी वाली सब्सिडी जो आप देते हैं ना कुछ करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके लैंड पे आपने प्रोडक्शन करी, लैंड की फर्टिलिटी कम हो रही है तो आपने सब्सिडी दी कि भाई 1 साल प्रोडक्शन मत करिए, दैट इज ब्लू बॉक्स सब्सिडी। एंड एम्बर बॉक्स सब्सिडी मतलब लिमिटेड दे सकते हैं, 5% से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए नहीं दे सकते। डेवलपिंग कंट्रीज को 10% तक अलाउड था। पीस क्लॉज यही कहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ सालों के लिए था, अब उन्हें भी 5% से ज्यादा नहीं देनी है। इंडिया ने बोला जब तक कोई और सोल्यूशन नहीं निकलता हम 10% देते रहेंगे। ओके, ये समझ में आ गया, इतने याद करते हैं, है ना।
इतना ही आप, क्योंकि आप रिवाइज फिर इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी, इतना रिवाइज कीजिए। ओके फ्रेंड्स, यस नो, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? वेरी गुड, विल कंटिन्यू टुमारो। सर पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो रिपीट करेंगे? बेटा तो पब्लिक confused। कमेटी 1919 एक्ट जो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद बनी थी 1921 में, पहली मीटिंग 1921 में हुई। इट इज द कमिटी दैट एनालाइजेस द रिपोर्ट दैट आर सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट बाय सीएजी। जो सीएजी की जो रिपोर्ट होती है उनको एनालाइज करने के लिए कमेटी बनती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इस कमेटी के मेंबर होते हैं 22, 15 are from Lok Sabha and 7 are from Rajya Sabha. All the members are elected by method of proportional representation by means of single transferable vote. These members hold the term for 1 year only. Ministers cannot be the member of Public Accounts Committee. Public Accounts Committee analyzes two reports of CAG. First is the report on finance account and second is the report on appropriation account. Public Account Committee chairman is generally the leader of the opposition party or comes from the opposition party. ठीक है, ये सब जानना है। ओके, और कोई दिक्कत? चलिए बच्चों, कल कंटिन्यू करेंगे। कल करना ऑल्टरनेटिवली पढ़ना है, कैसे पढ़ना है बच्चे भाई यार बताओ आप लोग। सर अल्टरनेटिव करते हैं। एक काम करते हैं, आईआर खत्म करेंगे फिर थोड़ा सा गैप ले लेंगे, है ना? ऐसे करते हैं, बताइए। एक दो दिन का गैप, फिर वो वाला टॉपिक, फिर 1-2 दिन का तो गैप। साथ में कर लेते हैं। तो एकदम साथ में मत कराइए वो। तो साथ में नहीं, आईआर साथ में ना कराएं, मतलब आईआर के लिए ब्रेक देना है और टॉपिक के लिए ब्रेक देना। सर गैप दे देके कराइए सर, बाकी चीजों को रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है सर। ठीक है, जैसे आप बोले। कल फिर आईआर रखें या आप आईआर परसों रखें, बताओ। सर परसों रख लो आप। ठीक है, परसों रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन रिवीजन आप लोगों को करना है। ठीक है, रिवीजन करना है। ओके, वेरी गुड। चलिए, विल कंटिन्यू डे आफ्टर टुमारो। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।